हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 446वां एपिसोड, द 446th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। Chhatarpur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukka Wealth Manager. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. My inside home and beauty partner is The Inside Story. A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital, Globus ITI Kamti, Gauvardhan Servicing Wala, that's my Atmanirbhar Bharat partner. Also to mention Joshi Security Systems. Also, a big thank you to all the people who support the show. Gemini Outdoors, a big thank you to Mohan Enterprises and उत्तर दक्षिण। नागपुर में सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन खाना मिलता है उत्तर दक्षिण में, लेकिन नागपुर में या इस पूरे देश में कुछ ऐसी इमारतें हैं जिन्हें देखकर दुनिया तारीफ़ करती है उस नाम को लेकर जो नाम ने आर्किटेक्चर में अपने आप को एक बड़ी स्थापना दी। कई सारे आर्किटेक्ट्स इन्हें आर्किटेक्चर का एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं, लेकिन हमें गर्व है कि वो एक नागपुरकर है। मेरे साथ इस वक्त आर्किटेक्चर में इस देश का सबसे बड़ा नाम मेरे साथ इस वक्त हैं आर्किटेक्ट वीरेंद्र खरे सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, राज की बात में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले तो सर आपके बारे में कुछ ऐसी बात जो शायद नागपुर शहर को नहीं पता, मैं ये माइक लगा लूँ अगर जी आपका प्रिय जी। तो सर एक बात जो नागपुर शहर आपके बारे में नहीं जानता है, व्हाट्स द इनसाइड स्टोरी ऑफ श्री वीरेंद्र खरे, आर्किटेक्ट वीरेंद्र खरे। सर इतने वर्षों से आप इतना बड़ा नाम बना कर रखे हैं आर्किटेक्चर में। सर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे या सपने कुछ और थे? देखिए, बेसिकली आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब माय फादर वाज ए वेरी गुड फैब्रिकेटर एंड ही डिड लॉट ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स. We had a company named Khare Brothers at Nagpur, and my father used to be a big fabricator. He used to be manufacture transmission line towers. He did a lot of powerhouses, and he also did ordnance factory at Ambajeri and Bhadravati, vehicle factory at Jodhpur. So he was basically a fabricator, and like every son, I used to follow his footsteps, and I also wanted to become a mechanical engineer. जी. So at that time. Students used to apply to all the colleges. I got admission in mechanical engineering, MSCT Bhopal. But when I went there for admission, there was some difference of opinion between the management of the college and the students, and there was a big fight. And that was witnessed by my father. जी. And at that time, the principal of the college, Mr. Solanki, said to my father that if your son joins this college, he will also become like these boys in 5 years of time. So my father was frightened that I will become a gunda. So he said, okay, you come back to Nagpur. Ji. But when I came back to Nagpur, I got admission in architecture. My father just said one line to me. I was always interested in making drawings, and I used to see a lot of mechanical drawings. So he said that mechanical drawings are mechanical, but architectural drawings are something in which you can show your creativity. So better you go for architecture. Then I got admission in architecture at VRC Nagpur. Ji. It was somewhere in the year 1973. जी. And I started getting educated from one of the most prestigious colleges. At that time, there used to be only 17 colleges of architecture all over India. Okay. And this was one of the prime institute at that time. Okay. And so it was just destiny for me to become an architect. But after getting educated, again there was no business for architects. So 3 years I was into my workshop, Khare Brothers. Ji. I worked with my father. Later on I started making, I wanted to show my works to people. So I started working for free for most of the people, builders. You just see what I can do. Ji. And how I can design. जी. And after 2-3 projects that came up, designed by me, people saw my work, and then they started coming to me. Okay. And slowly and steadily, I became a known figure in architecture. जी. But the people who are doing architecture now, they don't know my story. They don't know कि मैंने कितने जूते घसे और मैंने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाए. At that time, I used to beg to people कि मुझसे काम तो कराओ, देखो तो सही मैं क्या कर सकता हूँ. जी. And that was the time. I used to give an example to my junior staff and everybody. कि लता मंगेशकर को भी पहले नूरजहां की आवाज़ में गाना पड़ा था. जी. बाद में लता मंगेशकर बनी. बिल्कुल सर. आप जानते होंगे
एक कैलाश खेर करके सिंगर है जी जिसने सिर्फ केवल 10,000 रुपए के लिए अल्लाह के बंदे गाने गाया था, वो गाना गाने के बाद वो आज तक ही हैज नॉट टर्न बैक. Similar thing happened with me. Once my building started coming up, people started seeing my works. They started giving me jobs also. Okay. So that was how I came to, and that was my destiny. And in the year 2006, I won a design competition all over India for Satyam Computers. It was a big project, 1200 crores. I got the first prize. I got, for the first time, I saw a check of 1 crore 10 lakhs in favor of an architect at Nagpur. So that was really unbelievable for me. जी. Anyway, I didn't see back after that, and I spent a lot of money on my profession, like building a big office, a corporate culture, all those things, all licensed software and everything. So I did a lot for architecture also, and I did a lot to develop myself also. ओके Yes. सर आपकी मैं इनसाइड स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ आज. सर जब आज आप घरों को देखते हैं, या मैं उस समय की बात कर रहा था जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी, उस समय के घर और आज के घर में क्या फ़र्क हो रहा है? देखिए उस समय बड़ी, मैं थोड़ा सा स्टोर भी दिखाता हूँ और आपसे बात भी करता हूँ. मैं देखिए जी. उस समय जो था स्टोर, उस समय जो घर हुआ करते थे जी वो बहुत ही जॉइंट फैमिली टाइप लोगों के लिए होते थे. देयर यूज्ड टू बी कॉमन टॉयलेट्स, देयर यूज्ड टू बी रूम्स फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स के ऑफ फैमिली. लेकिन कई लोग साथ में सोते थे. जब शादी हो गई तो एक रूम मिल जाया करता था उसको. इस तरह का डेवलपमेंट होता था. जी. बट लेटर ऑन जैसे जैसे न्यूक्लियस फैमिली होना शुरू हुई, लोग अलग अलग होना शुरू हुए, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर टूटने लगा, लोग फ्लैट स्कीम और इंडिपेंडेंट बंगलोज और इन सब में शिफ्ट होने लगे. जी. बट दिस इज द ट्रेंड नाउ. मतलब न्यूक्लियस फैमिलीज इज द ट्रेंड नाउ. एंड अगर लोग हैं भी तो साथ में 2 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे, इसलिए लोग चाहते भी हैं कि हम थोड़ा सा दूर रहें और साथ में भी रहे. कई लोग एक ही बिल्डिंग में 4 फ्लैट में रहते हैं अलग अलग, बट दे ऑलवेज आर देयर टुगेदर. सो देयर इज अ डिफरेंस इन लिविंग एट दैट टाइम एंड नाउ. ओके सर, जब हम घर के बनाने की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चरल बॉडीज़ की हम बात करते हैं, वो वो देश के सबसे बड़े अपार्टमेंट स्कीम्स हो या फिर वो रो हाउसेज हो या बंगलोज हो, जिस किस्म का स्ट्रक्चर आजकल बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन जो अपनी ताकत है वो भी कहीं ना कहीं छोड़ रही है, और जो हम मॉडर्न जो डिज़ाइंस हैं उनको भी अडेप्ट करना चाहते हैं. तो ये जो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आया है सर होम मेकिंग में और होम के स्ट्रक्चर मेकिंग में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये क्या हो गया कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्पायरलिंग कॉस्ट ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज, लोगों को ये मतलब समझ में आया कि जितना ज़्यादा FSI यूज़ करके हम बनाएंगे उतनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएंगी. मतलब अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ दी कंस्ट्रक्शन जो है फ्लैट की वो कम होगी. इसलिए लोगों ने टॉल जाना चालू किया, हाई राइज बनाना शुरू किया. जी. अब बॉम्बे में जाइए, अगर मुझे भी नारीवन पॉइंट में रहना, आपको भी नारीवन पॉइंट में रहना, हर आदमी को रहना है, तो वहाँ छोटी बिल्डिंगे तो बना नहीं सकते ना आप. जी. लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये सोच गलत है. गवर्नमेंट ने इस तरीके से करके हाई राइज बिल्डिंग्स बना के इतना कंजेस्टेड कर दिया कि नाउ दैट वी आर फेसिंग अ problem of plenty, I will call it. Problem of plenty means when you congest a city, जी. you actually the infrastructure starts crippling. राइट सर. लोग जो है ट्रैफिक जाम होने लग जाते हैं, पानी नहीं आता है, सीवर लाइन चौक होती है, सब जगह मतलब एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम. जी. तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑल हाई डेंसिटी के लिए है. मैं आज की तारीख में ये सोचता हूँ कि शहर के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है लो राइज हाई डेंसिटी, जिसमें 3 से 4 माले की और 5 माले के ऊपर बिल्डिंग ना हो और डेंसिटी भी एडिक्वेट अचीव हो जाए 250 यूनिट्स पर हेक्टेयर. इतनी हो गई तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. एंड ये जो आज चल रहा है, अभी आप देखेंगे कि समझिए शहर में धारावी है बॉम्बे में जी. या स्लम एरियाज है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो है पेंडेमिक का. जी सर. सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं. उसका कारण क्या है? कंजेस्टेड एरिया में छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं. जी. हम लोगों ने प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट किया है. हम ये पेंडेमिक तो है जो भी है, लेकिन आप जाइए, मैं बीच में मेरे एक फ्रेंड है गोवा में रहते हैं जी. मैंने उनसे बात किया, बोले हमारे यहाँ कोई पेंडेमिक नहीं है. बोले पेंडेमिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक इसमें रहता है, मतलब बंगलों में रहता है, उसके चारों तरफ ग्रीनरी है. मैं अकेला हूँ, मतलब मेरी फैमिली है और 1-2 वर्कर्स है, वो वहीं रहते हैं. तो मुझे ऐसा कोई पेंडेमिक फील नहीं हुआ, मेरे को लॉकडाउन फील ही नहीं हुआ. जी. एंड ही एंजॉयड हिज लाइफ. सो when he said to me that why can't we do it in Nagpur also?
we are now planning for a known person of Nagpur, जी 140 एकर्स पे एक छोटी टाउनशिप बना रहे हैं जिसमें कि हम लो राइज हाई डेंसिटी एंड मॉडरेट बनाएंगे प्लानिंग, ताकि वहाँ कंजेशन क्रिएट ना हो और एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल एंड इट शुड बी अ फ्यूचरिस्टिक वन विथ IGBC नॉर्म्स एंड सस्टेनेबिलिटी. तो दिस इज़ व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द डे. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट कंजेस्टिंग. आप देखिए रामदासपेट में एक से एक बिल्डिंगें बनने चालू हो गई, बड़ी बड़ी, जी सब रोड्स जाम हो गए. आप कैनाल रोड पे जाइए, इट हैज़ बिकम एन एक्सीडेंट स्पॉट. कब कौन गिरेगा कब मरेगा पता नहीं है, सच बात क्योंकि लोग एकदम से बिल्डिंग में से बाहर निकलते हैं जी और कुछ है ही नहीं. 9 मीटर की रोड के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग अलाउ ही नहीं करनी चाहिए थी. जी ये कारण हुआ सब TDR लोडिंग एंड FSI के कारण. हर सर- किसी को रामदासपेट में सर रहे. लेकिन सर जमीन महंगी हो गई, घर महंगे हो नहीं, गए. जमीन महंगी तब होती है जब है ना उसकी डिमांड बढ़ती है. इट्स जी। डिमांड एंड सप्लाई. जी why you have not made new areas. अगर यही गवर्नमेंट टाइम पे जैसे मेट्रो रीजन बना रही है, वहाँ पे अगर नए एरियाज डेवलप करती, नई चीज़ें बनाती. आज देखिए पहले नागपुर इतवारी तक सीमित था, जी रेलवे लाइन के उस तरफ था, इस तरफ आया बजाज नगर, शिवाजी नगर, रामनगर, गोकुलपेट, धर्मपेट, ये सब एरियाज बने. तो ये सब एरियाज अगर उस समय ध्यान नहीं देती थी NIT तो कैसे बनती थी. जी। आज मैं मानता हूँ दिल से कि NIT का एक बहुत बड़ा रोल था कि शहर को सुंदर बनाने में. 1936 में एक पहली प्लानिंग अथॉरिटी वन ऑफ द इंडिया में बनी थी, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट. उसने जी। इतने सुंदर एरियाज डेवलप किए कि नागपुर का उन्होंने नक्शे ही बदल दिया था. जी ये हम आज क्यों नहीं कर सकते. आज NMRDA बन गई है. हम्म, मैं बीच बीच में कभी कभी मेरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोगों से बात होती है, वो बोलते हैं कि हमको भी नए NMRDA में नए नए एरियाज डेवलप करने जी। हैं. बट अकेला हाउसिंग बनाने से लोग नहीं जाते. यू हैव टू क्रिएट अ फुटफॉल. आपको वहाँ पे ऐसे चीज़ें बनानी पड़ती है जो कि फुटफॉल क्रिएट करें वहाँ पर. जैसे इंस्टीट्यूशंस है, आपको याद होगा नागपुर के डेवलपमेंट में प्रियदर्शनी कॉलेज बना, देन वो मेडिकल कॉलेज लता मंगेशकर बना. जी वो तब जब वहाँ बना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था. जी सर. जैसे ये बने धीरे धीरे सारा एरिया डेवलप हो गया. तो व्हाई कांट वी क्रिएट समथिंग लाइक दैट कि हम एक फोकल एरियाज बनाए. समझिए आज जामठा है, जामठा के आसपास है, हम इस तरह का एरिया बनाए जो क्राउड पुलर हो. जी। वो एक बार वहाँ आ जाए, जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन आ जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेस आ जाए, ऑटोमेटिकली लोग जाना शुरू कर देते हैं वहाँ पर. और एक बार वो लोग जाना चालू हो तो वो एरिया पूरा पॉपुलेट हो जाता है. सच तो बात. ये चीज़ करना चाहिए जी आज का ज़माना देखते हुए. ठीक. सर कोरोना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो सवाल जितना जवाब मुझे उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूं, उतना ही मेरे 2 और गेस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे. जी. मैं थोड़ा सा स्टोर दिखाता हूँ, द इनसाइड स्टोरी, और फिर आपसे और आपसे और मेरे दोनों जो मेहमान हैं उनसे वो सवाल पूछता हूँ. जी. धन्यवाद साहब. जी. हम इस वक्त द इनसाइड स्टोरी में हैं और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जहाँ पर आर्किटेक्ट वीरेंद्र खरे सर भी अपनी राय उनकी राय लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से वो ज़मीनी तौर पर चीज़ों को समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करना आज उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरे 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी मैं बात करूँगा. और मेरे जो 2 मेहमान हैं वो भी इस शहर में एक बड़ा नाम लेकर हैं. मेरे साथ इस वक्त मोनिका भगवागर मैम हैं जो एक फाउंडिंग मेंबर हैं V7 केयर फाउंडेशन की. मैम नमस्कार. एक बिज़नेस लेडी भी हैं, एक सोशलाइट भी हैं और बहुत सारा काम कोरोना के दौर में कर चुकी हैं और बहुत सारा दर्द अपने अंदर में लोगों का बसाकर बैठी हैं इस वक्त. मैम नमस्कार और आपका राज की बात में स्वागत है. Thank you, Raj. Happy to be here. थैंक यू मैम. मेरे साथ अविनाश केवलरमानी सर हैं जो डायरेक्टर हैं द इनसाइड स्टोरी के. सर नमस्कार. नमस्कार. सर जस्ट टू मेंशन आपका स्टोर बड़ा ब्यूटीफुल है. मुझे ऐसा लगता है नागपुर शहर में ऐसा कोई स्टोर नहीं होगा, Thank you so much. है ना जी. वीरेंद्र खरे सर आपसे भी ये मसले पे मैं बात करूँगा. मैं चाहूँगा कि वो माइक थोड़ा सा आप अपने तरफ ले लें. जी ओके सर. कोरोना जो ये पूरा का पूरा वक्त है कोरोना का, इसमें सर हम जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं सर बहुत सारे इश्यूज़ हैं. एक इंडस्ट्रीज़ लॉन्ग कोविड में चली जाती हैं. आप सभी बिजनेसेस को देखें तो लॉन्ग कोविड में जाते हैं. आप इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए ये एक हर सेंटिनरी में एक चीज़ होती है. कभी प्लेग आया था, हम सुनते थे बचपन में जी कि प्लेग आया था, काफ़ी लोग मरे थे. तो 100 साल में एक बार इस तरह की एक प्राकृतिक आपदा आती है जी और ये समझिए हम लोगों को देखने को मिली है. अब हम लकी है कि अनलकी है पता नहीं जी. लेकिन ये हुआ कि एट सेंटर इट वाज रियली ए वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर ए प्राइम मिनिस्टर जी टू लॉक डाउन द कंट्री. जी
अगर वो करते हैं तो इकोनॉमी ख़राब होती है, नहीं करते हैं तो लोग मरते हैं। तो एट दैट टाइम ही टुक द डिसीजन कि नहीं, मुझे लोगों की चिंता पहले करनी चाहिए, इकोनॉमी सुधर जाएंगी, चीज़ें डेवलप दोबारा हो जाएंगी, तो उन्होंने बंद किया। और उनकी सोच सही थी शायद उस समय के लिए। उनका ख्याल था कि हमने जैसे महाभारत 18 दिन में जीत ली थी, 21 दिन में शायद हम ये कोरोना को जीत लेंगे। अगर हम लोग अपने अपने घर में रहे तो स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है, स्प्रेड होती है लोगों के मिलने से। इस दौरान मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपने घर में अपने आप को बंद कर लिया। लोगों ने अपने यहाँ के नौकरों को हटा दिया, खुद काम करना शुरू कर दिया जी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि जो 18 और 21 दिन सोचा गया था जी, इट एक्सटेंडेड फॉर 3 months 4 months एंड इवन लॉन्गर देन दैट। आज हम 1.25 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, हम कोरोना से फ्री नहीं हो पाए हैं जी। बट इस दौरान क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द लोग जो घर पे रहे, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो हर आदमी जब घर पे रहा, अभी नॉर्मली क्या होता है कि लोग हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं जी उनके पास समय नहीं होता देखने के लिए कि घर में किस चीज़ की कमी है। जी। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन इट हैज़ हैपेंड कि लोगों ने स्टार्ट किया रियलाइज़ करना कि हमारे घरों में इन चीज़ों की कमी है, हमने ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दे कुड स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड्स, इवन एट टाइम्स झगड़े भी बहुत हुए होंगे बट स्ट्रेंथन भी हुए लोगों के बॉन्ड्स जी। और लोगों ने समझा कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, कैसे क्वालिटी में रहना चाहिए। तो जो लोगों का ये हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीनों में मैंने एक यहाँ पे नागपुर में एक फ्लैट स्कीम बनाई है, एनरिको हाइट्स, जी जो रेडिसन होटल को लगकर है। जी बिल्कुल। हमें काफ़ी इंक्वायरीज आई, काफ़ी लोग आए, क्योंकि लोगों को अब बड़ा घर चाहिए, अब छोटा घर नहीं चाहिए। कंजेस्टेड में लोग रहना नहीं चाहते जी और लोग चाहते हैं कि हमें एक प्राइवेसी मिले, हमें एक वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रूम मिल जाए एक्स्ट्रा। अभी कई बॉम्बे के तो बिल्डरों ने ये करना चालू कर दिया है, प्रोपेगेंडा की हमारे घर में एक, हम जो आपको फ्लैट बेच रहे हैं उसके साथ में एक समझिए ये एक कॉल से जो होता है ना आपका बिजनेस सेंटर जी, वो हम साथ में दे रहे हैं कि कम्युनिटी आपको हॉल, कभी- बिजनेस हाँ, सेंटर। कभी आपको कोई अपनी बिजनेस मीटिंग करना है तो आप उसी बिल्डिंग में नीचे जाके आप कॉल पे कर लीजिए, बिल्कुल। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कर लीजिए। इस तरह की फैसिलिटी लोगों ने अपने घर में भी रखना शुरू कर दिया। जी देन दे हैव गॉन फॉर ऑटोमेशन, लॉट ऑफ ऑटोमेशन हैज़ बीन डन नाउ। अभी लोगों ने बोला कि हमें तो वॉशिंग मशीन चाहिए, हमें डिश वॉशर चाहिए, हमें ये चीज़ की कमी महसूस हो रही है, हमें फूड प्रोसेसर्स चाहिए। तो कई लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक भी, तो एक बिज़नेस थोड़ा सा एक अलग तरीके का हो गया, लोगों को हर तरीके के लोगों को बिज़नेस भी मिलने लगा है। जी तो कोरोना के पीरियड में ये ज़रूर हुआ। दूसरा, जैसे मैं इंटीरियर भी करता हूँ और मैं बिल्डिंगें भी बनाता हूँ। बिल्डिंग में लोगों ने बहुत सफ़र किया, मतलब लोगों के बिज़नेस दे हैव गॉन टू ज़ीरो तक आ गए लोग कि हमें काम धंधा ही नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ सारा लेबर फोर्स जो है जी वो है, समझिए एक्सपोर्ट क्वालिटी बोलते हैं हम। छत्तीसगढ़ वाले लोग नागपुर में आके काम करेंगे, जी छत्तीसगढ़ में नहीं करते वो लोग। जी देन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे, बिहार से आएंगे, जी। बंगाल से आएंगे, वहाँ के लेबर आते हैं। जी पैंडेमिक में उन लोगों ने बहुत सफ़र किया बेचारों ने। उन लोगों को एक तो भागना पड़ा अपने गांव, और अभी भी होता है कि बेचारे बीच बीच में चले जाते हैं अपने देश, क्योंकि यहाँ काम नहीं है। यहाँ काम नहीं है तो उनको रहना नहीं है, क्योंकि जी। यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है। तो दे गो बैक टू देयर होम टाउन्स, वहाँ कुछ रहते हैं और फिर वो बोलते हैं अपना घर है, हम रहने खाने पीने का खर्चा नहीं है, हम यहाँ इतना कम से कम बचा लें। तो इस तरीके से हुआ है। तो ये एक लॉस तो बहुत हुआ है लोगों का। और दोबारा, लेकिन एक मैं कई सारे वेबिनार्स अटेंड किया हूँ नेशनल लेवल पे, जहाँ पर लोग इस पे डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की क्या करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें ऑटोमेशन में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी आने लगी है। काफ़ी सारा रेडीमेड मटेरियल लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है, एंड दे वांट दैट फैक्ट्री मेड चीज़ें यूज़ की जाए ताकि ये लेबर पे डिपेंडेंसी कम होती जाए। जी। इसलिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, मुझे लगता है कि आगे का दौर इस तरह का हो सकता है। ओके। जी। मैं मोनिका मैम से भी एक सवाल मैं पूछूंगा। मैं मोनिका मैम से भी एक सवाल जानने की कोशिश करूंगा कि मैम क्या सोचती हैं इस पूरे के पूरे मैम कोरोना काल में आपने जो सेवाएं V7 केयर फाउंडेशन ने बहुत सारा काम किया, आपने बहुत करीबी से देखा लोगों की तकलीफ़ों को। मैम ये जो पूरी की पूरी कोरोना काल में जो तकलीफ़ हुई, क्या मैम ऐसा भी हो सकता था कि ये तकलीफ़ें शायद नहीं होती? ऐसा हो सकता था? No, that's not possible. ओके। And
आप पास्ट टेंस में क्यों बोल रहे हैं? तकलीफ़ें तो अभी भी हो रही हैं। अभी आपने सुना वीरेंद्र सर ने क्या बोला कि लोग वॉशिंग मशीन ख़रीद रहे हैं, डिश वॉशर्स ख़रीद रहे हैं, तो फिर वो काम वाले कहाँ जाएंगे? द काम वाली बायर्स आर ऑल्सो लूजिंग देयर जॉब, नो? दे आर ऑल गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल ऑटोमोटिव मशीन्स फॉर एवरीथिंग। सो वेयर आर दीज पीपल जो हमारी झाड़ू वाली थी? इवन आई एम थिंकिंग ऑफ नाउ बाइंग वन ओन स्वॉबर एंड स्टफ लाइक दैट इलेक्ट्रिकल। सो इन लोग कहाँ जाएंगे? हमको कॉन्स्टेंटली कॉल्स अभी भी आ रहे हैं कि माई हस्बैंड सिटिंग एट होम, इज़ जॉबलेस, गिव अस वर्क। पर काम कहाँ से लाएं? हमको काम मिले तो हम कमाएं तो उनको भी हम लें। So it's a very vicious circle and things are not at all, I mean, things are bad. We are sitting in a very nice, comfortable area, so we think, okay, we are working, things are hunky-dory. If you go to the grassroots level, things are very bad. I'm constantly getting calls of domestic abuse, mental health issues, which have naturally erupted out of lockdown. And the corona pandemic has happened. So it's a very sad scenario. So to say that it's over and done with, no. We, I think, will take a very long time to recover from this. मैम, हम कहते हैं कि जो कोविड है उसने इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को एक लॉन्ग कोविड में ढकेल दिया है। अब हम कोविड के बाद लॉन्ग कोविड से लड़ रहे हैं अब, और दिन पे दिन नए नए म्यूटेंट्स का आना और भी ज़्यादा डरा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? Like I said, that is not going to end up in a hurry. This whole thing is going to go for a much, much longer time. We are, right now, all the industries are crawling. To my knowledge, a lot of people have shut down work. Because जब काम ही नहीं है तो फिर वो सैलरीज कहाँ से देंगे? जब बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो so it's going to be a very long drawn struggle, a battle. And what I feel terrible is the youngsters जिन्होंने अभी भी स्टार्टअप शुरू किया था, all these youngsters are sitting at a very sad situation. Students, we are forgetting students, the children जिनका इस मौके पे होना था कि they should be out in the schools playing, studying. They are sitting at home constantly in front of the screen, eyes are getting affected. So to my mind, things are in a very, very unhappy state. So when people say ki, it's okay, we are managing, we are not managing at our level, when we are in a comfortable state. Look beyond that. There are people who need your help. Please reach out, find out. Things are very bad. So राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये बात शायद हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अविनाश केवलरामानी जी हमारे साथ हैं, जो इनसाइड स्टोरी के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज से फिर 4 बजे सब कुछ बंद, कैसे देखते हैं इसको? सर, बिजनेसेस के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है जी। मतलब लास्ट पैंडेमिक से मुश्किल से निकले थे, थोड़ा सा थिंग्स वर गेटिंग बेटर। जैन तक लग रहा था कि थोड़ा सा मार्केट इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड अगेन जी। फिर लॉकडाउन लग गया। अब वो इतना लंबे लॉकडाउन के बाद अगेन एक बार माइंडसेट होता है कि ओके नाउ थिंग्स विल बी बेटर, एंड अगेन ये हो जाता है, तो डेफिनेटली बिजनेसेस के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर जिस तरह से मैम ने कहा कि देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो शायद अभी भी हम उसको देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आप भी समझते हैं, व्यापार को छोड़कर अगर देखा जाए तो समाज में आज भी कोविड को लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर अभी तक शायद नेताओं की नज़र नहीं पड़ी, प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी। डेफिनेटली ओवरऑल प्रॉब्लम है। ओवरऑल प्रॉब्लम सर, लेकिन इनसाइड स्टोरी जो है वो हर घर के अंदर में लोग खुश हैं, क्योंकि अब लोगों को शायद घर बहुत करीब से देखने को मिल रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि घर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू होम डेकोर। तो सर आपके लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। यस, थिंग्स हैव चेंज फ्रॉम लास्ट ईयर। लोगों का नज़रिया थोड़ा अपने घर को लेके डिफरेंट हो गया है। पीपल आर मोर कॉशियस अबाउट कंफर्ट। People are making farmhouses. People are making developing terraces. Right. So somewhere एक luxury segment में काफी add on भी हुआ है. People want to have a good space in their house to spend time. And people should not go to China and to Delhi and to Bangalore. जी. And people should not be now going to China or to Delhi or to Bangalore. जी. Because Nagpur has something like this to offer, which is fantastic, and I actually feel good, Virendra ji, and I congratulate this young man who's taken this mega step and done this. So we should all get together and support his vision to beautify Nagpur and your homes. Yeah. जी. So please be here. Yes. वीरेंद्र सर, कुछ समाज के मसले हैं, मैं चाहूँगा कि आप के दूरबीन से अगर हम उसको देखें तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? सर, एक विषय नागपुर शहर में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है और वो विषय है 40,000 पेड़ों को बचाने का। अजनी वन एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने में, सरकार के सामने में, कि जो पूरा का पूरा IMS है
इंटरमॉडल स्टेशन जो अजनीबर बनने की बिल्कुल कगार पर आ चुका है और तैयारियां जोरों शोरों से हैं प्रशासन द्वारा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? पेड़ों को बचाने के लिए देखते हैं, नागपुर के डेवलपमेंट के बारे में इसको सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक कि ये IIMS डेवलप होने का सवाल है, नो डाउट इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए बिग बिजनेस फॉर द पीपल, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देखें कि हम जिस चीज़ को नया है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, हम इसको बाहर बना सकते हैं तो शहर के अंदर क्यों बनाएं? हम बूटीबरी में बना सकते थे, हम खापरी में बना सकते थे, वाई इनसाइड दी, क्योंकि अकेला इसका इम्पैक्ट जब ये जाएगा एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए, तो इसका जो इम्पैक्ट है, कितना ट्रैफिक जनरेट करेगा, कितना सीवर जनरेट करेगा, कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट करेगा, कितना पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ये शायद अभी किसी को पता नहीं है जी। और इसकी पब्लिक हियरिंग भी होती है तो हम लोग नॉर्मली इतने नेग्लिजेंट रहते हैं ना, कोई ध्यान ही नहीं देता है कि क्या हो रहा है जी। अभी शहर में, कोई कुछ करता है किसी को पता भी नहीं चलता है। एटलीस्ट इन सब चीज़ों के लिए पब्लिक हियरिंग्स करना चाहिए था। एनीवे, अब ये झाड़ काट रहे हैं, ये तो गलत है, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, झाड़ों को काटना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप पैदा नहीं कर सकते हो, आप उसको काटने का भी हक नहीं है। आप जो झाड़ 40-40 साल में बड़े हैं, आप उसको काट देंगे तो क्या, आप कितने भी नए झाड़ लगा लो, उतना 40 साल आपको वेट करना पड़ेगा उन झाड़ों को उतना पहुँचने में। और ये अपने लंग्स है, ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने, लोग बोलते हैं कि पैंडेमिक आया, ये कई लोगों की अप्रीहेंशन है कि ये कोई एक बायोलॉजिकल वारफेयर हुआ है फ्रॉम चाइना जी। लेकिन ये क्या पहली बार हुआ है? क्या हम आगे नहीं देखेंगे? हो सकता है हमें आगे भी देखना पड़े। हमें अपनी एक तैयारी करनी चाहिए कि हम किस तरीके से इन सब पैंडेमिक से आगे चल के भी हम अपने आप को बचाव करें, एक हाइजीनिक जगह में रहे, हेल्दी जगह में रहे। अभी क्या है, अगर हम शहर को कंजेस्ट करेंगे तो हम लोग शहर के बाहर रहना पड़ेगा। अभी ये जो शहर के अंदर जो चीज़ें बन रही है, ये शायद मुझे नहीं लगता बननी चाहिए थी, ये शहर के बाहर होती तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि वहाँ पे एक नया एरिया डेवलप हो रहा है, नई चीज़ें डेवलप होती, नई हाउसिंग डेवलप होती, पूरा नया होता हो। ये क्या है, सिटी के अंदर शायद मैं हो सकता है डिफर करूँ लोगों से, लेकिन गलत हो रहा है। सर, क्या एक चीज़ और जिसको लेकर हज़ारों पेरेंट्स परेशान हैं, और वो है नो स्कूल नो फीस। सर, पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन स्कूल मंजूर है, लोग बोलते हैं हम फीस क्यों दें, लेकिन क्या होता है ना, ये स्कूल है, स्कूल को चलाने के लिए भी खर्चा आता है जी। मैं सारे स्कूल वालों के साथ में सिंपैथी इसलिए रखता हूँ क्योंकि उनके यहाँ करीब जो टीचर्स है, 100-150 टीचर, उनका घर उस पर चलता है जी। इन लोगों ने क्या हो गया, मेरा एक फ्रेंड है जिसके करीब 30,000 बच्चे उसके यहाँ टोटल स्टूडेंट्स जी। वो इतना परेशान है, उसके बाद 300 बसेस थी जी। अब वो बसेस खड़ी कर दी, उनके ड्राइवरों को नौकरी चली गई, वो बसों को उनको बेचना पड़ा क्योंकि EMI नहीं भर पा रहे। अभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। आज देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन से खड़ा हुआ है जी। इसको गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट देखे जी। लेकिन इनको नहीं अगर सपोर्ट करेंगे, और स्कूल को अगर मान लीजिए नहीं देना चाहते पेरेंट्स, तो क्या अगले साल वो बच्चे को भेजेंगे नहीं स्कूल? भेजेंगे ना, उसी स्कूल में भेजेंगे ना, तो फिर लोग एरियर्स में क्यों देंगे? आपको तो पैंडेमिक में हमारा ऑफिस प्रैक्टिकली 6 महीने बंद रहा जी, बट वी पेड टू आवर स्टाफ। जो लोग अच्छे घर से थे उनको कहा गया कि भाई देखिए, ये हम नहीं कर पाएंगे, आप मत लीजिए, यानी दे आर यू आर फ्रॉम वेल्दी फैमिली, यू डोंट नीड दिस सैलरी। बट जिनको ज़रूरत थी हमने उनको सबका पेमेंट किया, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नहीं करेंगे इनका केयर तो कौन करेगा? और आज जो टीचर्स है, दे आर डिपेंडेंट, दे आर मतलब मेकिंग टुमारोज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन, सारे वही बना रहे हैं। उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए, इनको देना चाहिए। मतलब अगर सैलरी मिल रही, भले घर पे रह के, आज वो लोग भी घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, क्लासेस तो बच्चों को चल ही रहे थे। मेरा ग्रैंडसन है, ही वॉज अटेंडिंग हिज क्लासेस, सो व्हाई शुड दे गेट दी फीस मिलनी चाहिए मेरे से। सर, मेरे आखिरी के 2 सवाल। एक सवाल जिस पे शायद अब बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाएं, लेकिन जब आप सरकार के काम को देखते हैं, आप प्रशासन के काम को देखते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, प्रशासन का जो भी काम हो रहा है ना, कुछ तरीके से ना, जैसे चीज़ भटक जाती है ना, कि हम रास्ते भूल गए कहीं जाना जी, वैसा हो गया है अभी। क्योंकि क्या हो रहा है कि इकोनॉमी फेल हो रही है, बैंकें फेल हो रही है। अभी देखिए, कई लोगों ने, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं नागपुर के, उनके ऊपर में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए महीने का EMI था। अब आपने ऐसे लाइट के स्विच के जैसे पूरे इंडस्ट्रीज बंद कर दी, आपने ट्रैवल बंद कर दिया, आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया। दिस वॉज नॉट हेल्दी एंड फेयर। जिस तरीके से हमने
अनलॉक किया है वैसे ही हमने लॉकडाउन करना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि लोगों को स्पेस मिलती कि प्लान कर सके। बट ये हुआ है तो अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट भटक गई है, उनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करना चाहिए। कभी अपोजिशन चिल्लाने लग गया है और अपोजिशन छोटी छोटी बातों को लेकर चिल्लाने लग गया है। तो ये भी मतलब जो था ही नहीं अपोजिशन, आज आप किसी किसी के मुंह सुन लगता है। अभी क्या हो रहा है, अपोजिशन में समझिए आज 540 लोगों की हमारी लोकसभा है, तो उसमें 270 लोग अपोजिशन के होते हैं जी। लेकिन आपको पता हो अभी आज 130 करोड़ की जनता में 100 करोड़ की जनता अपोजिशन में खड़ा हो गई है और 100 करोड़ की जनता ऑब्जेक्ट करने लगी है कि ये जो हो रहा है सही नहीं। आज आप बताइए, ये 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल जाना कहाँ तक जस्टिफाइड है? आप बताइए 6 महीने के अंदर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हमको डीजल भराने के लिए सोचना पड़ता है गाड़ी में। अभी लोग जोक मना रहे हैं कि काय को आप पैदल चलना शुरू करो ना, हेल्दी हो जाओगे आप। इज दिस अ वे ऑफ टैकलिंग द थिंग्स? नो, आई थिंक। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। किसी को अभी आज किसी को पूछेंगे पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है इंडिया का, लोगों को नाम भी नहीं पता जी। 2 लोगों से छोड़ के तीसरे का नाम ही नहीं पता है जी कौन है। तो ये देयर इज नो गवर्नेंस, ऐसा लगता है। अब सर- पता नहीं, हर किसी का ओपिनियन चेंज हो सकता है। जी सर, मेरा ये आखिरी सवाल होगा आपसे कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और आपके आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेकर अपने जीवन का सिद्धांत बनाकर चलते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं जो आर्किटेक्ट, अपकमिंग आर्किटेक्ट हैं? देखिए, मैंने बहुत जूते घसे और मैंने बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया। मेरे यहाँ पीक में 80 आर्किटेक्ट हुआ करते थे। मैंने हर तरह के शौक भी किए। मैं मारुति 800 से लेकर BMW 7 सीरीज़ तक मैंने खरीदी और एंजॉय किया, बेस्ट लग्जरी सब कुछ किया। लोग जो देखते हैं आज, वो मुझे उस स्टेज पे देखते हैं कि जहाँ मैं लग्जरी एंजॉय कर रहा हूँ। वो ये नहीं देखते कि मैं पहले स्कूटर पे भी घूमता था। मैंने इतना हार्डवर्क किया है जी। और डेडिकेशन, हार्डवर्क और नॉलेज ऑफ द थिंग, इसका कोई तोड़ नहीं है किसी भी चीज़ में। आज मेरे से सब चीज़ छिन भी जाए ना, मैं अपने दिमाग से दोबारा खड़ा हो जाऊँगा। तो दिमाग को डेवलप करना चाहिए आदमी ने। क्या बात है। यानी उन्होंने ये नहीं करना चाहिए कि मैं पैसे के पीछे भागूं। मैं आज बता दूं, आज का किस्सा है, मेरे ऑफिस में एक ग्रेजुएट आर्किटेक्ट एक स्टेयरकेस डिज़ाइन नहीं कर पाया। मैं बोला ये क्या तुम लोग का एजुकेशन पैटर्न हो गया है कि वो बोलता मेरे सर बैठती नहीं स्टेयरकेस में। तो दिस इज़ द वे पीपल आर, दे वांट टू एप मी, मेरे को फॉलो करना चाहते हैं, बट वो नहीं देखते कि हमने पहले खुद तो नॉलेज लेना चाहिए। कुछ नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आजकल नए स्टूडेंट्स, नए बच्चे, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड कॉलेज में जाके ध्यान दो, पढ़ाई करो। हर वक्त व्हाट्सएप और फेसबुक से कुछ नहीं होने वाला है। और आजकल ये जो है ना, फेसबुक और व्हाट्सएप ने पूरा कबाड़ा करके रख दिया है। सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर फेसबुक पे, मेरा 446 एपिसोड है। हर चीज का है ना 2 पहलू होते हैं, 2 शीशे के 2 मैं वो पहलू दूसरे होते हैं। पहलू में हूँ सर। क्या होता है कि आप प्रोग्रेसिव पहलू में जी। हैं, आपने अपने आप को डेवलप कर दिया आपके शो दिखा के, और लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर दिया फेसबुक पे कमेंट कर करके। तो ऐसे भी लोग सर मुझे ऐसा लगता है कि जी। ऊपर वाले ने जब आपको भेजा ज़मीन पर, जी, जी। तब जिस घर में भेजा शायद ऊपर वाले को पता था कि उनका सरनेम खरे है, क्योंकि आप बात भी बिल्कुल खरी खरी कर रहे जी, 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 हैं। तो आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमको एक ऐसी बात सिखाई जो शायद हमें इस वक्त सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग एंड गिविंग ऑल द काइंड वर्ड्स मैम। थैंक यू सो मच। बहरहाल आज राज की बात में हमने एक बड़ा स्पेशल एपिसोड किया, और इस स्पेशल एपिसोड के अंदर में हमने जो बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, लोगों तक बात करने की कोशिश करी, वो क्या है। जो बात वीरेंद्र खरे सर ने कही, जो बात अविनाश केवलरमानी सर ने कही, जो बात मोनिका मैम ने कही, कि एक तो ये कि आप हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। एक, दोनों पहलू को समझना ज़रूरी है। एक दूसरा, एक बात जो शायद हम सिर्फ एक नज़र से देखते हैं कि सामने वाला लग्जरी एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसके स्ट्रगल को हम शायद भूल जाते हैं, या हमें शायद पता ही नहीं कि उस व्यक्ति ने कितना स्ट्रगल किया होगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए। सबसे अहम बात जो मोनिका भगवागर मैम ने भी कही और वीरेंद्र खरे सर ने भी कही कि तकलीफ़ें बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हम शायद एक छोटी सी चीज़ ये देखकर कि 4 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारे पे आसमान टूट जाता है, लेकिन आज भी लॉन्ग कोविड परेशान कर रहा है लोगों के शरीर को। आज भी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं,
लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का EMI लोग नहीं भर पा रहे हैं, जिन्होंने एक वक्त पर हज़ारों लोगों को नौकरियां दी, हमने उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और शायद उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो आज इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें भी वापस वो पल देखने को मिले जो पल उन्होंने कोरोना के पहले देखा था। राज की बात में आज इतना ही। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें परिवार को लेकर, और अपने घर को खूबसूरत बनाएं इनसाइड स्टोरी के साथ, क्योंकि इनसाइड स्टोरी आपके घर के अंदर की खूबसूरती की गारंटी बिल्कुल लेता है। और जब घर बने खूबसूरत तब व्यक्ति सोचता है कि कुछ सांसें और ली जाए। तो घर को खूबसूरत बनाइए और ज़िंदा रहिए। जय हिंद।